Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mrs. Sana Fatma, SS Chemistry Divisional Public School and College Sahiwal. Welcome to online classes, students. We are on chapter number 9, solutions, and our today's topic is ideal and non-ideal solutions, Raoult's law, solubility and solubility curves. In the previous classes, you have learned about what are solutions. A solution is a homogeneous mixture of two or more kinds of different molecular or ionic substances. You have also learned about what are solute and solvents. In a binary solution, the substance which is present in large quantity is called a solvent, and the other component which is present in small quantity is called solute. किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सेकंड कंपोनेंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं. इसमें सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट जो है दैट एक्ट लाइक अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. In this lesson you will learn about what is ideal solution, what is non-ideal solution, what is Raoult's law, Raoult's law when both components are volatile, what is solubility, what are solubility curves, what is fractional crystallization. What are ideal and non-ideal solutions? When two or more than two liquid substances are mixed, the solution may be ideal or non-ideal. What are ideal solutions? If the forces of interactions between the molecules of different components are same as when they were in the pure state, they are ideal solutions. कि जब solution बन जाता है, solution के जो components होते हैं उनके दरमियान जो forces of interaction है अगर वो same हो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कि जब वो प्योर स्टेट में मौजूद होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं. एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन इज आइडियल. कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इसके इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे. आइडियल सॉल्यूशंस हैव जीरो एंथैल्पी चेंज एज देयर हीट ऑफ सॉल्यूशन. जब आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं तो उस दौरान ना तो हीट रिलीज होती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है. एंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो होगा. इफ द सॉल्यूशंस ओबे रॉल्स लॉ देन दे आर आइडियल. ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे. इनकी एग्जांपल्स बेंजीन एंड ईथर सॉल्यूशन एंड बेंजीन एंड टॉल्यूइन सॉल्यूशन. नाउ व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? If the forces of interactions between the molecules of different components are not same as when they were in the pure state, they are non-ideal solutions. ऐसे solutions में जो forces of interaction है वो same नहीं होती. जैसा कि molecules से pure state में होते हैं तो उनके दरमियान जो forces of attraction है solution की form में आने के बाद of attraction उन forces की तरह नहीं होती. ऐसे solutions को हम non-ideal solutions कहेंगे. If the volume of solution is not equal to the sum of individual volume of the components, the solution is non-ideal. जो solution का volume होगा उसके components के individual volume के sum के equal नहीं होगा. Non-ideal solutions have non-zero enthalpy change as their heat of solutions. Non-ideal solutions जब भी बनेंगे तो उस दौरान heat change होगा. Heat जाते ही evolve होगी, absorb होगी. इनमें enthalpy change zero नहीं होगा. If the solutions do not obey Raoult's law, then they are non-ideal. ऐसे solutions जो हैं वो Raoult's law को obey नहीं करते. इसकी examples में HCl and water solution and ethanol and water solutions. Now we are moving towards Raoult's law. Raoult's law can be defined in three different ways. First definition is the vapor pressure of a solvent above a solution is equal to the product of the vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of solvent in solution. कि किसी भी solution में जो solvent का vapor pressure होगा वो इस solvent का जो pure state में vapor pressure होगा और उसकी जो mole fraction होगी इनके product के equal होगा. अगर हम mathematically इसको देखें तो P will be equal to P naught and
x1. P is the vapor pressure of solvent in the solution and P naught is the vapor pressure of pure solvent and x1 is the mole fraction of solvent. Students, we know that sum of mole fraction of all the components of solution will be equal to 1. x1 और x2 are the mole fraction of solvent and solute और इनका जो सम है that will be equal to 1. अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो x1 will be equal to 1 minus x2 and now putting the value of x1 in equation 1. हमारी जो इक्वेशन 1 थी P इज इक्वल P नॉट x1, उसमें अगर हम x1 की जगह x1 की जो वैल्यू है 1 माइनस x2 वो पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाती है. इन द नेक्स्ट स्टेप इसमें हम P नॉट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ P नॉट आ जाएगा. P नॉट को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट एंड x2 आ जाएगा. नाउ रीअरेंज द इक्वेशन. इसमें क्या होगा कि P को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे एंड P नॉट एंड x2 को इस साइड पे ले आएंगे. इसमें फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P नॉट माइनस P इज इक्वल P नॉट x2. P नॉट माइनस P जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा P एंड नाउ द इक्वेशन विल बी डेल्टा P इज इक्वल P नॉट x2. दिस इज आवर इक्वेशन 2. फ्रॉम द इक्वेशन 2 we can give an other definition of Raoult's law. That is the second definition. The lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. इसमें आप इक्वेशन में देख सकते हो डेल्टा P को हम lowering of vapor pressure कह रहे हैं और that will be directly proportional to x2. x2 is the mole fraction of solute. Now rearrange equation 2 to get equation 3. इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा P इज इक्वल P नॉट x2, अगर हम इसको रीअरेंज करें P नॉट को हम इक्वेशन की इस तरफ ले आए तो हमारे पास बन जाता है डेल्टा P ओवर P नॉट will be equal to x2. इसमें डेल्टा P ओवर P नॉट जो है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसमें फिर हमें इस इक्वेशन 3 से एक थर्ड डेफिनेशन मिल जाएगी. The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. कि जो relative lowering of vapor pressure है that will be equal to the mole fraction of solute. The relative lowering of vapor pressure is independent of temperature. Temperature पर depend नहीं करती. It depends upon the concentration of solute. Solute की जो भी concentration होगी उस पर ये depend करेगा कि जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है या जो उसमें लोअरिंग हो रही है वो किस हिसाब से होगी. थर्ड इज इट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन द सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट. अगर आप एक जितनी क्वांटिटी के डिफरेंट सॉल्यूट लें और उन्हें एक ही मैस सेम सॉल्वेंट लेके उसकी एक ही जितनी क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व करें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगी. Now here is example number 9. The vapor pressure of water at 30 degrees centigrade is 28.4 torr. Calculate the vapor pressure of solution containing 70 gram of cane sugar in 1000 gram of water at the same temperature. एक तो आपने जो solution है उसका vapor pressure find out करना है and also calculate the lowering of vapor pressure. इसमें हमारे पास इक्वेशन आएगी P इज इक्वल P नॉट x1. इसमें हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है. फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द मास ऑफ कैन शुगर दैट इज 70 ग्राम एंड नाउ द मोलर मास ऑफ कैन शुगर दैट इज 342 ग्राम पर मोल. नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड. इसमें हम फार्मूला लेंगे मास ओवर मोलर मास और 70 ग्राम डिवाइडेड बाय 342 ग्राम तो यहाँ पे हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे दैट विल बी 0.20 मोल्स ऑफ शुगर. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर. mass of water in the solution is 1000 ग्राम एंड द नंबर ऑफ मोल्स जो हैं
वो हम कैलकुलेट करेंगे mass of water divided by molar mass of water, 1000 gram over 18 gram per mole. It will be 55.49 moles of water. Now we will add the number of moles of sugar and the number of moles of water, और उनको ऐड करने से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स 55.69 आ जाएंगे. After that we will calculate the mole fraction of sugar and the mole fraction of water. Mole fraction of sugar को हम x2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल. टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हमारे पास n1 प्लस n2 है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, इनके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे. 0.2 डिवाइडेड बाय 55.69 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0036 मोल्स. नाउ वी विल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. उसमें हम क्या करेंगे कि n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, 55.49 डिवाइडेड बाय 55.69 and mole fraction of water will be 0.9964 moles. Now we will apply the formula to calculate the vapor pressure. इसमें हमें रिक्वायर्ड है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज 28.4 टॉर, और इसमें आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे P इज इक्वल पी नॉट x1. P नॉट जो प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर है दैट इज गिवन हियर 28.4. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ जो हमने इस स्टेप में कैलकुलेट की है, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.29 डॉट. यानी हमने सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट कर लिया है. नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हम प्योर सॉल्वेंट में से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा. इसमें हमने क्या करना है कि पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसमें हमने जो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर किया है इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.11 टॉर. नाउ रॉल्स लॉ व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल. हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट हैं दोनों वोलेटाइल हैं, इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं. Rolle's law can be applied to understand the relationship between mole fraction of two volatile components and their vapor pressure before making the solution and after making the solution. कि Rolle's law दो volatile components के mole fraction और उनके vapor pressure के दरमियान जो भी relationship बनता है solution बनने से पहले और solution बनने के बाद इसको explain करता है. Consider two liquid A and B जिनके वेपर प्रेशर P0 A and P0 B है, and after making the solution vapor pressure of both the liquids are changed. Now the vapor pressure of these liquids in solution state will be PA and PB. के solution बनने से पहले इनके वेपर प्रेशर P0 A and P0 B है, और after making solution ये जो वेपर प्रेशर है ये PA and PB हो जाएंगे, और इनकी मोल फ्रैक्शन जो है दे विल बी XA एंड XB रिस्पेक्टिवली. अप्लाइंग रॉल्स लॉ टू बोथ कंपोनेंट्स. इसमें जो हमारी रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है P इज इक्वल पी नॉट XA, इसको हम कंपोनेंट A पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा PA इज इक्वल पी नॉट A XA, और इसी तरह हम कंपोनेंट B के लिए इस इक्वेशन को लिख लेंगे P0 B is equal PB is equal P0 B XB. तो टोटल जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड द वेपर प्रेशर ऑफ B. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा. अब हम PA और PB की जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. ये P0 A XA PA की वैल्यू है और P0 B XB PB की वैल्यू है. ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम पुट कर देंगे. As we know that sum of mole fraction of XA and XB will be 1, इसमें हम XB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 1 माइनस XA हमारे पास XB की वैल्यू आ जाएगी. अब हम इस XB की वैल्यू जो है इस ऊपर वाली इक्वेशन में XB की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PT इज इक्वल P0 A XA प्लस P0 B 1 माइनस XA. इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस P0 B को इस
के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये एक्स ए वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे और पी नॉट बी जो है उसको सेपरेट कर लेंगे। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एक्स ए कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और एक्स ए हमारा जो है वो बाहर आ जाएगा प्लस पी नॉट बी। ये हमारे पास अब इक्वेशन 4 बन जाती है। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट ए है दैट इज द लो बॉइलिंग एंड बी इज हाई बॉइलिंग। इट्स मीन दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन बी एट अ गिवन टेम्परेचर। कि सेम टेम्परेचर पे ए का जो वेपर प्रेशर है वो बी के मुकाबले में ज़्यादा होगा। और इक्वेशन 4 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इसको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। Now here is the graphical explanation. If a graph is plotted between xp or the mole percentage of b on x-axis and p total on y-axis, तो हमें एक straight line graph जो है वो मिलेगा। Only those pair of liquid give straight line which form ideal solution. So Rolle's law is one of the best criterion to judge whether a solution is ideal or non-ideal. Now here is a graph. All the possible solutions of two components A and B have their vapor pressure on the straight line connecting P naught A with P naught B. All such solution will be ideal. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक कंपोजिशन हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और वेपर प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। इसमें यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है जो कि P naught A को P naught B से मिला रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस पे हमें ए और बी के जितने भी पॉसिबल कंपोजिशन के साथ सॉल्यूशंस बन सकते हैं उनके वेपर प्रेशर को ये स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस बनेंगे ए और बी को मिलाने से उनके वेपर प्रेशर को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और जो डॉटेड लाइन्स हैं ये जो प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। Each point on this straight line represents the vapor pressure of a solution at a given temperature with the corresponding contribution of both the components A and B. इस straight line पे हर point जो है वो solution के vapor pressure को represent कर रहा है। और वो solution किस तरह से बन रहा है, वो component A और B को मिलाने से बन रहा है। और जो solution का vapor pressure होगा वो component A और B के vapor pressure के नतीजे में जो है वो आपके पास आए। Two dotted lines represent the partial pressure of individual components of solution. They show the increase of vapor pressure of a component with the increase in its mole fraction in the solution. जो dotted line आपके पास आ रही है यहाँ पे ग्राफ में ये A और B के इंडिविजुअल प्रेशर्स या पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास B की कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम अलॉन्ग द एक्सिस मूव करते जाते हैं B की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और साथ ही इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है। यानी जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बी का होता जाएगा उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इस तरह हम ए को देखें तो यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन 0 है तो ए का वेपर प्रेशर जो है वो भी 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम अलॉन्ग द एक्सिस मूव करेंगे ए का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है 10%, 20%, 30%, और इसी तरह से जो इसका वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसमें जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी भी कंपोनेंट को होगा उसी हिसाब से उसका वेपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। Consider a point G on the straight line. This point represents the vapor pressure of solution with 30% mole contribution of component B and 70% of component A. इसमें हम अगर इस G पॉइंट को कंसिडर करें और इसमें हम कंपोजिशन सोल्यूशन भी देखें तो यहाँ पे 30% कंट्रीब्यूशन B का है और 70% contribution A का है। Since A is more volatile, so its contribution towards the vapor pressure of solution is represented by PA. A जो है वो B के मुकाबले में ज़्यादा वोलेटाइल है। इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ये जो वेपर प्रेशर की लाइन जा रही है दिस इज फॉर A, इसको हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पॉइंट G पे कंपोनेंट A और कंपोनेंट B दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा उसका सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो ए का कंट्रीब्यूशन होगा यानी ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम
PA से रिप्रेजेंट करेंगे। Likewise, the contribution of the less volatile component B is represented by PB, और जो less volatile component B है जिसका contribution सिर्फ 30% है, उसको हम PB से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका जो वेपर प्रेशर होगा, इन दोनों के वेपर प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, जिसमें 30% कंट्रीब्यूशन B का है एंड 70% कंट्रीब्यूशन जो है वो A का है। Similarly, we can calculate the relative contribution of A and B towards the total vapor pressure of solution by taking other points along the line joining P0A to P0B. इसमें हम अब ये जो लाइन P0A को P0B से मिला रही है, इसके ऊपर हम किसी भी कॉम्बिनेशन का सोल्यूशन लें, उनका हम वेपर प्रेशर जो है वो नोट कर सकते हैं। सपोज इसमें हम कंसिडर करें कि हमारे पास B 10% है, A 90% है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरह ये जो पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जब हम सोल्यूशन 20% B और 80% A के साथ ले रहे हैं। तो इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि P0A को P0B से मिला रही है, ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं A और B के, इनके सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। So the total vapor pressure of the solution corresponding to the point G will be equal to the sum of vapor pressure of the individual components P, A and PB as shown in the figure. तो G पॉइंट पे जो solution का vapor pressure होगा that will be equal to the sum of the vapor pressure of A and vapor pressure of B. इसमें A और B के जो vapor pressure का sum होगा उसके equal होगा total vapor pressure of solution. So it is the graphical representation of Raoult's law. And now we are moving towards solubility and solubility curves. What is solubility? Solubility is defined as the concentration of solute in the solution and it is in equilibrium with the solid substances at a particular temperature. Solubility को हम एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, that is the number of gram of solute in 100 gram of solvent. अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो उसके अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम्स हैं वो मौजूद होंगे। Here are some examples of solubility. At a particular temperature, saturated solution of sodium chloride in water at 0 degree centigrade contains 37.5 gram of NaCl in 100 gram of water. अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपके पास सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सोल्यूशन है एंड यू आर टेकिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड के 37.5 ग्राम डिसॉल्व होंगे। इसी तरह से अगर आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लें वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके 100 ग्राम में कॉपर सल्फेट के 14.3 ग्राम डिसॉल्व होंगे, और अगर आप टेम्परेचर 0 से बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड दैट विल बी 75.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। Now here is the explanation. Whenever a solid solute is put in liquid solvent, then the molecules or ion break away from the surface of solid and pass into the solvent. कि जब भी हम किसी solid solute को liquid solvent के अंदर डालते हैं, उनके जो molecules हैं या ions हैं वो आपस में उनकी interaction break होना शुरू हो जाती है and they move into the solvent. These particles of solute are free to diffuse throughout the solvent to give a uniform solution. सॉलिड के जो पार्टिकल हैं ये इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं और ये एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना देते हैं। द सोल्यूट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अबाउट इन द सॉल्यूशन फेज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय देम। सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है। In this way, some of the particles of solute may come back towards the solid due to collision. इसमें फिर ये चांस हो सकता है कि कोलिजन के दौरान solute के कुछ particles दोबारा से solid में trap हो जाएं and these molecule or ions are entangled in its crystal lattice and get deposited on it and this is called recrystallization or precipitation. तो इस कोलिजन के दौरान क्या हो सकता है कि molecules या ions crystal lattice में जाकर trap हो सकते हैं और वहाँ deposit हो सकते हैं और इस process को recrystallization या precipitation कहते हैं। If
excess of solid is present in the solution, then the rate of dissolution and the rate of crystallization become equal. अगर solution में solid excess में मौजूद हो तो rate of solution formation and the rate of crystallization दोनों equal हो जाएंगे, and this is the state of dynamic equilibrium. The concentration of solute at equilibrium with the solution is constant for a particular solvent and at a fixed temperature. The solution thus obtained is called a saturated solution of the solid substance, and the concentration of this solution is termed as its solubility. इसमें जो हमारे पास solution हासिल होगा उसे हम saturated solution कहेंगे, और उस saturated solution की जो concentration है उसको हम solubility कहेंगे. How to determine the solubility of a substance? हम अब practically किसी भी substance की solubility को किस तरह से determine कर सकते हैं. To determine the solubility of a substance, सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will prepare a saturated solution at a constant temperature. या हम constant temperature पर किसी भी solid का saturated solution बनाएंगे. Then solution will be filtered. Solution को फिर हम filter करेंगे. And a known volume of the solution is evaporated in a china dish. फिर हम एक china dish में एक known volume of solution का लेकर उसकी evaporation करेंगे, and from the mass of the residue the solubility can be calculated. और उसमें हमारे पास फिर जो residue रह जाएगा वहाँ से हम उसकी solubility जो है वो calculate कर सकते हैं. Now here are the solubility curves. Temperature has a marked effect on the solubility of many substances. बहुत सारे substances ऐसे हैं जिनकी solubility temperature change होने से change होती है. Mostly solubility temperature increase करने से increase होती है. So graphical representation between temperature and solubility of a solution is called solubility curve. इसमें जब हम temperature और solubility के दरमियान जो relationship है उसको graph के जरिए से represent करें, that are called the solubility curves. There are two types of solubility curves: continuous solubility curves and discontinuous solubility curves. What are continuous solubility curves? Continuous solubility curves do not show sharp breaks anywhere. इनमें जब curves बनती हैं तो वो continuously move करती हैं, इनमें बीच में जो है वो कोई breaks नहीं होंगी. ग्राफ जो है वो continuously move करता जाएगा. KClO3, potassium dicarbonate, lead nitrate and calcium chloride are showing continuous solubility curve. इसमें हम देख सकते हैं कि ये KClO3 का ग्राफ है जो कि continuously temperature increase करने से इसकी solubility जो है वो continuously increase हो रही है. इसी तरह पोटेशियम डाइकार्बोनेट के लिए ग्राफ है, इसमें temperature increase करने से solubility जो है वो continuously increase होती जा रही है. In the similar way, this is a graph for lead nitrate and the solubility is increasing with the increase of temperature. अब कैल्शियम क्लोराइड के केस में भी इस तरह से है कि solubility जो है वो temperature increase होने से बढ़ती जा रही है. उनके ग्राफ जो है वो continuous curves show कर रहे हैं. The solubility curves of KCl, sodium chloride and sodium nitrate give the straight line. इसमें अगर हम देखें तो KCl का ग्राफ, NaCl का ग्राफ और सोडियम नाइट्रेट का जो ग्राफ है, these are the straight line graphs. Straight line ग्राफ जो है वो आपके पास आएगा. NaCl show a very small change of solubility from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी solubility में बहुत कम चेंज आता है. Cesium sulfate show exceptional behavior whose solubility decreases with the increasing temperature and becomes constant from 50 degree centigrade onward. Anyhow, it show continuous solubility curve. अगर हम cesium sulfate को देखें तो इसकी solubility temperature increase होने से पहले decrease होना शुरू हो जाएगी और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये constant हो जाएगा. ये ग्राफ जो है वो constant एक्सेस के अलावा जो है वो move करना शुरू हो जाएगा. These are the continuous solubility curves. Now discontinuous solubility curves. Sometimes the solubility curves show sudden changes of solubilities and these curves are called discontinuous solubility curves. इन curves में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो एक सडन चेंज आता है solubilities में
और उसके बाद एक न्यू कर्व स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कर्व्स को डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा सोडियम सल्फेट और उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। These curves are the combination of two or more solubility curves. एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जो कर्व्स हैं, ये दो या दो से ज़्यादा कर्व्स का कॉम्बिनेशन है। And at the break, a new solid phase appears and another solubility curve of that new phase begins. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि solubility curve मूव कर रही है और इसके बाद एक ब्रेक आता है, उसके बाद एक न्यू कर्व स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद भी क्या होगा कि एक ब्रेक आएगा और एक न्यू कर्व स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअल में क्या है, ये 2 से 3 कर्व्स का कॉम्बिनेशन है। एंड it is the number of molecules of water of crystallization which changes and hence solubility changes. एक्चुअली में क्या होता है कि जब एक कंपाउंड वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, उसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, एक्चुअल में वो चेंज होते जाते हैं और साथ में सॉलिबिलिटी चेंज होती जाती है। अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो कैल्शियम क्लोराइड में 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड की वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। आफ्टर सम टाइम इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, अब 6 वाटर मॉलिक्यूल की बजाय डिजॉल्व होकर इसके साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। इसमें फिर इसकी सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम फिर इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन का नंबर जो है वो चेंज होगा। आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन 4 की बजाय 2 रह जाएंगे। इसमें फिर आपके पास एक और सॉलिबिलिटी कर्व जो है वो आपके पास आ जाएगी। और ये जो टोटल जिसका ग्राफ बन रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कर्व्स। और ये क्यों चेंज आ रहा है, एक्चुअल में इनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो चेंज होती जा रही है। Now here is the fractional crystallization. The curves in the figure show that the variation in solubility with temperature is different for different substances. ये जो हमने अभी ग्राफ देखा है continuous solubility curves में, इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन द solubility of different substances, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इफेक्ट डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट के केस में देखें तो इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉलिबिलिटी में चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है। लेकिन KBr और KCl के केस में अगर देखें तो ये जो चेंज है इतना ज़्यादा रैपिड नहीं है, ये ग्रेजुअल चेंज है। ये इसमें इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ सॉलिबिलिटी, लेकिन ये इंक्रीज इतनी ज़्यादा रैपिड नहीं है। इसमें हर जो कंपाउंड है उसकी सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर के इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। So these differences in the behavior of compounds provide the basis for fractional crystallization, which is a technique for the separation of impurities from the chemical product. इसमें यही जो इनका डिफरेंट बिहेवियर है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी जो डिफरेंटली चेंज होती है, यही बेस बनती है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की, जो कि किसी भी केमिकल प्रोडक्ट में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं। फिर इज द मेथड कि हम किस तरह से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इम्प्योर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द हॉट सॉल्वेंट इन विच द डिजायर्ड सोल्यूट इज लेस सॉल्युबल देन द इम्प्योरिटीज। सबसे पहले हम जो इम्प्योर सोल्यूट होगा उसे हॉट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि उस सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। इन द नेक्स्ट स्टेप, as the hot solute is cooled, the desired solute being comparatively less soluble separates out fast from the mixture, leaving impurities behind. क्योंकि उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इम्प्योरिटीज के मुकाबले में कम है, तो जब हम उसकी कूलिंग करेंगे तो सॉल्यूट की क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और लिक्विड के अंदर जो है इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। इन दिस वे प्योर डिजायर्ड प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इस तरह से हम जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको इम्प्योरिटीज रिमूव कर सकते हैं। नाउ वी विल रिकैपिचुलेट द लेसन। इन दिस लेसन वी हैव रीड अबाउट व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
We have read about the three definitions of Raoult's law. Raoult's law when both components are volatile. We have read about what is solubility, what are solubility curves, what are continuous and discontinuous solubility curves, and we have read about what is fractional crystallization. Now we are moving towards our today's assignment. Here are some questions. What are the differences between ideal and non-ideal solutions? Second question is define Raoult's law in three different ways. Third one is define solubility. Fourth is define solubility curves. Fifth one is what is recrystallization or precipitation. Sixth question is what is the difference between continuous and discontinuous solubility curves. Seventh question is write the methods of fractional crystallization. Thank you students. Allah Hafiz.